पूरितं हृदयं येन पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतं नमः रामप्रेमामृतं नमः. थर्ड mantra from Sundarkand. अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि. तो हम लोग हमेशा ये 2 श्लोक से शुरू करेंगे, ठीक है. One is paying tribute to Goswami Tulsidas for writing this and bringing this knowledge to us, and the second one is praising Hanuman ji. अतुलित बलधामम. वो हमने लास्ट टाइम देखा था, हनुमान जी ने लंकिनी को मारा था और लंकिनी के साथ लंकिनी का सत्संग हो गया था हनुमान जी के साथ, है ना. वो हमने समझा था कि what it means to have a सत्संग with हनुमान जी. एंड देन उसके बाद वो आगे जाते हैं. then he actually enters the नगर, मतलब लंका नगरी. सोचते हुए जाते हैं किसके बारे में? राम जी के बारे में. तो यहाँ से शुरू करते हैं. जो प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, आप लोग के फ़ोन में होगा, ठीक है. आई सेंट इट. प्रबिसी, एंड विल गो ओवर द शब्दार्थ एंड भावार्थ एज वी गो अलॉन्ग. ओके. प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपुकर ही मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंड एक्चुअली इसमें बताया गया है कि इफ़ यू आर इन द स्पिरिचुअल जर्नी और इफ़ यू हैव an इष्ट देवता and you're connected to your इष्ट देवता or doing some good spiritual practices, how things become easier for you. तो प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, मतलब नगर प्रवेश कर रहे हैं काम करने के लिए. हृदय राखी कौशलपुर राजा, श्री राम को मन में रखते हुए आई एम एंटरिंग दैट दिस थिंग नगर. गरल सुधा, इसमें 4 चीज़ें हैं. पहला है गरल सुधा. गरल मीन्स पॉइजन, सुधा मीन्स अमृत. अगर आप ऐसा करके रहोगे, इफ़ यू आर गुड इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कीपिंग दैट इष्ट देवता इन योर हार्ट, विश विल बिकम अमृत सुधा, मतलब पॉइजन विल बिकम नेक्टर. What can be poison in a life? Any examples? Negative thoughts, very good. What else? Ahankar, yes. Inflated ego, है ना. What else can be poison in a life? Hatred, nasty people, difficult situations. All the vikars, right? Kam, krodh, moh, lobh, mad, matsarya. It can be poison for our mind. रिपु करही मिताई. रिपु मीन्स होता है एनिमी. करही मिताई मतलब वो मित्र बन जाते हैं आपके. आपके एनिमी आपके मित्र बन जाएंगे if you have good spiritual practices. How that happens? Because you start emitting positive energy. You really don't care about other person, how their mind is functioning. You're always available to them no matter what they are thinking about you. You don't judge them. ये सेंटेंस बहुत कॉमनली मैंने सुना है किसी से. आई एम नॉट जजिंग बट but you are judging, isn't it? Only 3 people are allowed to judge. Okay, who are those 3 people? Any idea? We have talked about this in previous lessons. Teacher, guru, vaidya, doctor, and advisor to politician. ऐसा इसी में लिखा है रामायण में. ओके. तो only 3 people are allowed to judge. Rest everything जयराम जी की, है ना. तुम सोचो जो तुमको सोचना है, मेरे मन में तो राम है ना. अगर आप ऐसे रहोगे, then you will be always present to people. One thing people always tell me, my phone number is on public domain for last 20 years. जब मेरा क्लिनिक था तभी भी वो मेरा प्राइवेट फ़ोन मेरा पब्लिक फ़ोन था, you know. And now also मोक्षधाम में my number is first on the website, है ना. So I get a lot of calls through Google or things like that. Many people have told me, ऐसा लग ही नहीं रहा आपसे पहली बार बात कर रहे हैं. They just talk, you know, openly. And then I tell them, you forgot, you have talked to me before. तो बोलते कब? पिछले जन्म में. I just make them laugh, that's all. Okay. So sometimes I solve their problem in the first call only. And some people have joined Moksham because of that. Okay. So that openness when you have, all your enemies will become they'll start supporting you gradually. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. This person is still doing the right stuff, what he or she is supposed to do. So we always make right choices. वहीं पे ना हमारा free will है कि no matter who is thinking what about us, we always make the right choices. Always take the right decision, what is good for everybody. Not compromising on anybody's physical, mental or spiritual well-being.
तो वो एक हनुमान जी जैसे ही कोई कर सकता है जिनके मन में हमेशा भगवान श्री राम है। तो गरल सुधा हो गया, रिपु करही मिताई हो गया। गोपद सिंधु, गोपद क्या होता है? गो मीन्स काउ, है ना, पद मतलब पैर। तो बारिश के दिनों में इंडिया में जैसे गांव में गाय जहाँ पैर रखती थी वहां पे पडल बन जाता था। सिंधु मतलब होता है ओशन, ओशन भी गोपद जैसा लगेगा, मतलब इट विल बिकम लाइक स्मॉल, बिग प्रॉब्लम्स विल अपीयर एज स्मॉल ओनली। इसका यही भावार्थ है। अनल सितलाई, अनल मीन्स क्या होता है संस्कृत? अग्नि, फायर, है ना। सितलाई मतलब शीतल, शीतल ठंडा फील होगा। व्हाट आर द सिचुएशंस इन लाइफ लाइक अ फायर? लाइफ कैन बी लाइक अ फायर समटाइम्स, राइट? बट इफ यू आर डूइंग योर राइट प्रैक्टिसेस, दैट विल हेल्प यू गो थ्रू इट, द लाइफ्स फायर। ओके, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और कोई हेल्प नहीं करता है। एक्चुअली शिव चालीसा में एक लाइन आती है, माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। If you go and read the Shiv Chalisa, which is so true. Sometimes when you have problems in life, nobody will come to rescue. Nobody will understand your problem. उसके लिए क्या problem है? It's your mind's problem. People will tell you like that. For us, it's a real problem, right? But then if you have your spiritual practices, you have a relationship with your Bhagwan, Bhagwan will solve your problem. Okay? तो इसका ये भावार्थ है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। तो सुमेरु पर्वत, ये इट सीम्स गरुड़ जी को बता रहे हैं, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। रज मीन्स धूल, मिट्टी। सुमेरु पर्वत इज द बिगेस्ट पर्वत, राइट, जिसमें वो समुद्र मंथन हुआ था, वो स्टोरी है सुमेरु पर्वत की। वो भी धूल जैसा लगता है, ये कुछ नहीं है। आई कैन क्रॉस ओवर दिस माउंटेन ऑल्सो। राम कृपा करि चितवा जाही, जिनके ऋषि राम जी ने एक बार कृपा करके अगर आपको देख लिया, मतलब अगर भगवान की दृष्टि आप पे पड़ गई, दैट हायर पावर, देन एनी ऑब्स्टेकल इज नॉट एन ऑब्स्टेकल फॉर यू, ऐसा इसका भाव है। देन व्हाट हैपेंस, अति लघु रूप धरेयु हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। अगेन ही टेक्स अ स्मॉलर साइज, लाइक ही एंटर्ड लंका इन अ स्मॉल साइज, सेम स्मॉल साइज ही टेक्स अगेन। बैठा नगर सुमिर भगवाना, भगवान को स्मृति में रख के सुमिरन करके ही एंटर्ड द नगर। नेक्स्ट है, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे तह जहाँ तह अगणित जोधा। मंदिर मंदिर, अब यहाँ घर थे राक्षस के, उनको मंदिर बोला गया है। क्यों? ये तुलसीदास का भाव है कि हनुमान जी जहाँ पैर रखे वो मंदिर से कम कहाँ होगा, भले वो राक्षस का घर है। तो आपके अंदर, आपके घर में कितने भी राक्षस हो, आप हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दो, राक्षस भाग जाएगा। दिस इज वन टिप यू कैन टेक। ओके, ऑफिस में है, ऑफिस में चैंटिंग शुरू कर दो मन में। जो जो राक्षस है दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। योद्धा दिख रहे थे उसको सब जगह, मतलब राक्षस लोग अपना पूरा प्रैक्टिस कर रहे थे, कलरी पैटू जैसा मार्शल आर्ट्स ये वो सब कर रहे थे। जहाँ देखा उसको बलशाली राक्षस ही दिखे। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। वो अत्यंत एक महल में गए जो बहुत ही विचित्र था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब इतने सुंदर महामहल थे, सोने की लंका बोलते हैं ना, इट वाज समृद्ध, फुल विथ, मतलब ये तो वाल्मीकि रामायण में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, पूरा एक चैप्टर है लंका के बारे में, उसके महल कैसे दिखते थे, उसमें क्या क्या रत्न जड़े हुए थे, सारे वो सारा वाल्मीकि रामायण में डिस्क्रिप्शन है, बहुत डिटेल में। वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि इतना सुंदर था वो सब। शयन किए देखा कपिते ही, वो फिर ना उन्होंने शयन किए देखा किसको? रावण को, रावण के महल में भी गए। पर मंदिर महु न दिखी वैदेही, वैदेही नहीं दिखी वहां पे। वैदेही किसको बोल रहे हैं? वैदेही, अभी जो हमने बात किया, विदेह, बिकॉज शी वॉज एन इनकारनेशन ऑफ शक्ति ना, सीता जी। वैदेही भी उनका नाम था, जिनको बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, वैदेही। एक नाम है सीता जी का। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर उनको एक आश्चर्य हुआ, उन्होंने एक भवन देखा जिसके बगल में एक हरि मंदिर बना हुआ था। तो बोले कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं पढ़ रही थी हरि मंदिर से, मेरे को एक और कुछ याद आया। क्या याद आ सकता है हरि मंदिर से मुझे? हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल का नाम है ना हरमंदिर, तो हरि का ही मंदिर है वो। गुरु नानक देव कृष्ण भक्त थे, विष्णु भक्त थे। तो गोल्डन टेम्पल को हरि मंदिर बोला जाता है। ओके, तो उसमें क्या देखा उन्होंने? एक हरि मंदिर था जो अलग से बना हुआ था, बिल्कुल डिफरेंट था सबसे। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई।
तो रामायुध मतलब राम जी के आयुध, आयुध मतलब होता है धनुष बाण, मतलब सारे धनुष बाण वो बने हुए थे वहाँ पे, उन चिन्हों से अंकित था। और इतना सुंदर था, सुंदर से बना हुआ था सब कुछ, जिसका वर्णन अगेन नहीं किया जा सकता था, इट कुडंट बी डिस्क्राइब्ड। वहाँ तुलसी का प्लांट भी दिखा उनको। तुलसी कौन राक्षस लगाता है तुलसी की पूजा कोई राक्षस तो नहीं करता है। तो हनुमान जी ऐसे आश्चर्य हो गए, लाइक सरप्राइज कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, है ना। और हनुमान जी बहुत हर्षित हुए, कपि हर्षाय, हर्ष कपिराय, मतलब बहुत सुख, मतलब उनको अंदर से बहुत खुशी हो गई कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका में तो निश्चर रहते हैं, मतलब राक्षस रहते हैं, यहाँ सज्जन कहाँ से आ गए, सज्जन मतलब अच्छे लोग। यहाँ कहाँ सज्जन कर बास, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब देखिए हनुमान जी बहुत ही हर स्टेज पे सोचते थे, आपने अभी तक जो देखा जर्नी, लाइक ही वॉज वेरी कॉन्टम्पलेटिव एंड थॉट ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली। उनको ये भी पता था कि राक्षस बहुत मायावी होते हैं ना, वो कुछ भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ही वॉज वेरी गार्डेड ऑल्सो, कि यहाँ सब सोच रहे थे कि यहाँ पे कैसे हो सकता है, वॉज कॉन्टम्पलेटिंग। तो जब भी भक्त के मन में कुछ संशय आता है, डाउट आता है, भगवान आ जाते हैं हेल्प करने, है ना भगवान कुछ और दिखा देते हैं। जैसे आपको भी जीवन में अगर बहुत कभी डाउट हो, तो चूज पाथ ए और बी। इफ यू आर डीप इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यू नो व्हाट पाथ इज राइट फॉर मी, व्हाट इज धर्म, व्हाट डज धर्म से, व्हाट डू आई हैव टू डू, देन वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि करना क्या है। तभी क्या हुआ, उसी समय विभीषण जग गए। हाँ, विभीषण का घर था वो। मन महु तरक कपे कही कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। तो हनुमान जी जब तर्क करने लगे अपने मन में, उसी समय विभीषण की आवाज आई, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। राम राम करके विभीषण उठे। सुबह का समय था, क्योंकि रात में हनुमान जी लंका एंटर किए थे, तो अभी ऑलमोस्ट लाइक 3-4 बज गया होगा ना, जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं हम विभीषण जगह। तो हनुमान जी को तो पहली बात यह आश्चर्य हुआ, राक्षस लोग तो रात में सो जागते रहते हैं और सुबह लेट से उठते हैं। आजकल तो सभी राक्षस हैं उस हिसाब से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बिलीव मी और नॉट, 2 बजे के पहले नहीं सोते हैं। 2 AM दे स्लीप, दैट्स व्हाट माय डॉटर टोल्ड मी। ऐसे घर पे 10:30 बजे लाइट ऑफ होना चाहिए सबका nobody sleeps before 2 AM, okay, so who can get up 4 AM? Nobody can get up at 4 AM। तो उनको बहुत खुशी होगी, सुबह सुबह कौन जग गया यहाँ पे लंका में। यही सन हटी करियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। मतलब उन्होंने जब विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया, तो हनुमान जी ने उन्हें बोला कि ये सज्जन पुरुष है, राक्षस तो राम नाम नहीं ले सकते, है ना, तो ये डिफरेंट है। ये सुन के वो बहुत खुश हो गए। तो हनुमान जी ने फिर विचार किया कि अपनी ओर से ही मैं अपना परिचय देता हूँ। लाइक ही वॉज ओपन टू गोइंग टू हिम एंड इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, बिकॉज ही हैज नॉट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू एनीबडी। अभी तक छुप छुप के जा रहे थे ना, रिमेंबर ही इज अ गुप्तचर, है ना, स्पाई है वो। अभी उनका काम है सीता जी का पता करना। तो ही वॉज वेरी कॉशियस। बट उन्होंने बहुत सोचा कि राम नाम बोल रहा है, तो ये तो राक्षस नहीं लग रहा है, मंदिर भी है, राम नाम बोल के उठ रहा है। अब राम नाम बोल के कौन उठता है, जो राम नाम बोल के सोया रहता है आप देखिए, आप कोई मंत्र जाप करके सोते हैं या कुछ नाम जप करके सोते हैं, आपके सुबह मन में वही आएगा। और पता है, अगर आपकी प्रैक्टिस और दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेविता होगी, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होगी, तो अगर आपके बीच में जैसे 2 बजे 3 बजे भी नींद खुलती है, तो आपके मन में वो चलता रहेगा। ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट, है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है समझना। तो ये बोले ये जरूर राम नाम बोल के ही सोया होगा, इसे राम नाम बोल के ही उठ रहा है विभीषण। तो मैं इससे जाके अपना ही इंट्रोडक्शन देता हूँ। बट अगेन ही वॉज वेरी कॉशियस, वो सीधा नहीं गया उसमें। विप्र रूप धरि बचन सुनाए। विप्र मतलब होता है, विप्र मतलब संस्कृत से अवधि आया है, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, मतलब जस्ट लाइक अ ड्रेस लाइक अ ब्राह्मण, ही चेंज हिज रूप। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी उठी तह आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहू निज कथा बुझाई। तो विप्र रूप डाल के गए और वचन सुनाए। वचन मतलब उन्होंने भी राम राम बोला, अंदर से घर से राम राम की आवाज सुनी, इन्होंने बाहर से राम राम बोला गेट से। वो आवाज सुन के विभीषण उठ के आए, उनको प्रणाम किया और पूछा कि सब कुशल मंगल है, और पूछे कि आप अपनी कथा बताओ, आप कौन हो, है ना, और अपनी समझाइए कि आप क्या आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे। कि तुम हरि दाहसन मह कोई, मोहे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आह आयहु मोहि करन बड़भागी। आप कौन हैं,
आप हरि भक्तों में से कोई हैं क्या? आप राम राम बोल रहे हैं, क्योंकि आपको देख के मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। मतलब लाइक दैट्स नेचुरल, दैट फीलिंग ऑफ लव इज कमिंग इन माई हार्ट। या फिर आप स्वयं राम जी हैं, है ना? ऐसा भी उन्होंने पूछा, जो मुझे मेरा भाग्य सुधारने आए हैं। ऐसा वो उनसे पूछते हैं विभीषण। अब ये फिक्शनल है एवरीथिंग व्हाट यू आर स्टडीइंग हियर, बिकॉज ये वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी विभीषण से मिले ही नहीं थे। वो मिले थे कब? जब आग लगाने की बात हो रही थी लंका में, जब उन्होंने इंटरवीन किया था। ये क्यों तुलसीदास ने डाला होगा? उनका प्रेम है दोनों राम भक्त को मिलाना, इसलिए शायद उन्होंने डाल दिया होगा। बट इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग लाइफ और लीडरशिप के बारे में, जो हम आगे देखेंगे अभी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन मन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। इसको गाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कह के अपना नाम बता दिया कि मैं ये हूँ, सच बता दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे पूछा ना कि आप श्री राम ही हो क्या, ऐसा। तो सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, मतलब बिल्कुल भावुक हो गए, और दोनों के आंख से आंसू निकलने लगे, और श्री राम जी के दोनों स्मरण करने लगे, उनके प्रेम और भक्ति और आनंद में वो मग्न हो गए। ऐसा ये दोहा बोल रहा है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दो पीपल जो सत्संग करते हैं, कहीं और मिले फ्लोरिडा में क्या बात करेंगे वो लोग। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, उनका सत्संग ही हो रहा है लंका में, है ना? यू ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल ऑफ योर ओन मेंटल टेंडेंसी, जिनको बियर पीने का मन होगा बोलेंगे वो चलो चलो बियर पीते हैं कैनेडियन बियर फ्लोरिडा में वो उसी में खुश हो जाएंगे। जो तत्वबोध की बात करना चाहते हैं वो तत्वबोध की बात करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। सो अपने अपने टेंडेंसी की पीपल मिलने से हम खुश हो जाते हैं, मन में बहुत प्रेम आ जाता है, तो वही ये भाव है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोह जानी अनाथा, करही कृपा भानु कुलनाथा। विभीषण जी बोल रहे हैं आगे, हे पवन पुत्र मेरी कहानी सुनो। मैं यहाँ वैसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। दांतों मतलब जीभ कभी भी कट सकती है ना दांतों के बीच में, मैं वैसे ही रहता हूँ। हे तात, तात बोलते हैं रिस्पेक्ट से फादर फिगर को, है ना? हे तात, मुझको अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पे कृपा करेंगे? क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ लंका में, है ना? मैं तो बहुत बच बच के साधना करता हूँ, जीव तो बचता रहता है ना दांत जब ये करता है वो हमारा नेचुरल होता है। तो ये यही पूछ रहे हैं कि मैं तो यहाँ रहता हूँ। अब जीभ एक और बोल सकते हैं कि जीभ, जब हम जन्म लेते हैं तो सिर्फ जीभ रहती है, दांत नहीं रहते हमारे पास। जब हम मरते हैं तो भी सिर्फ जीभ रहती है, दांत नहीं रहते। जीभ से हम अपना लाइफ बिगाड़ सकते हैं और लाइफ संवार भी सकते हैं। जीभ इज़ अ वेरी पोटेंट वेपन एक्चुअली, यू नो। इसी जीभ से विभीषण जी ने जाके रावण के सारे सीक्रेट्स बता दिए थे, बताए थे कि नहीं, है ना? ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन विनिंग द वॉर। तो अपने आप को जीभ बता रहे हैं, और जो बाद में सच भी हुआ था, जीभ जैसे ही काम किए उन्होंने जीभ से। तो फिर आगे बोलते हैं विभीषण जी, वो अपने बारे में बेचारे बता रहे हैं कि मैं कैसे रहता हूँ। लाइक ही इज़ लिविंग इन अ सिचुएशन विच इज़ लाइक हेल, बट ही इज़ द ओनली पर्सन हु थिंक्स व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। ऐसा फील होता है कभी कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में I'm living in this, and then I don't know what others are doing, but I have to do the right stuff. But it's so difficult, to get that project or do the right way, isn't it? होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो ये याद आना चाहिए। आप जीभ हैं बाकी दांत हैं, आपको काटने के लिए रेडी है। तामस तनु कुछ साधुन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये बहुत फेमस लाइन है। तामस तनु कछु साधन नहीं, तामस तनु है मेरा, तनु मतलब शरीर, तामस मतलब तामसिक राक्षसी शरीर है मेरा। आई एम बॉर्न इनटू दैट फैमिली। हैव यू हर्ड पीपल सेइंग माय लाइफ इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई एम बॉर्न इनटू दिस फैमिली? सुना है? कितने लोग ब्लेम करते हैं अपने फैमिली को। आई विश आई वाज बॉर्न इन अ डिफरेंट फैमिली, आई हेट माय फैमिली। Teenagers, many adults also have seen all the time blaming their parents, right? When they're 40 50 still they blame their parents. हाँ, तो यही है, वो बोल रहे हैं कि तामस तनु कछु साधन नहीं, मैं कैसे साधन करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आई एम बॉर्न इनटू दिस फैमिली। प्रीति न पद सरोज मन माही,
पद सरोज मतलब लोटस फीट, है ना। किसके बारे में बात करें? श्री राम के बारे में। प्रीति भी नहीं है मेरे अंदर, मतलब ही इज सो हम्बल एंड ही इज गोइंग टू बिकम द राजा ऑफ लंका। बट द ह्यूमिलिटी देखो, मेरे अंदर तो उतना प्रेम भी नहीं जो मेरे अंदर होना चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं, थोड़ी साधना कर लेते हैं, बोलते हैं वाह हमने बहुत कुछ कर लिया, डन फॉर द डे, राइट। तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि कृपा के आप जैसे संत मुझे मिल ही नहीं सकते हैं। तो मेरा भाग्य है, तो मुझे भरोसा तो हो गया है, ठीक है, कि मेरे ऊपर हरि की कृपा है क्योंकि आप मुझे मिल गए। तो आपको भी ये भरोसा होना चाहिए, आपको सत्संग मिला है तो हरि की कृपा आपके ऊपर हो गई है ना। योर जर्नी हैज स्टार्टेड इन द राइट डायरेक्शन, नो मैटर वेर यू आर कमिंग फ्रॉम, वॉट यू डू डजेंट रियली मैटर, राइट। नेक्स्ट है, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करे ही सदा सेवक पे प्रीति। जब रघुवीर जी की कृपा है, जब वो समझ गए लाइक आई हैव ब्लेसिंग ऑफ भगवान, तभी तो आप मुझसे अपने आप से आके मिले। मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप ही मुझसे मिले। मतलब क्या है, आपको किसी गुरु के पीछे नहीं जाना है। गुरु का मिलना कोई प्रयास नहीं होता है, इट्स नॉट एन एफर्ट, इट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन। गुरु किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बुक के फॉर्म में, सत्संग के फॉर्म में, एनी पर्सन इन योर लाइफ। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट आई डोंट हैव अ गुरु। बहुत लोग वरी करते हैं ना, डोंट हैव टू वरी। यू स्टार्ट रीडिंग दिस ऑन योर ओन, स्टार्ट डूइंग योर साधना, join some yoga group, do some meditation on your own, and gradually क्या होता है ना, पाथ क्लियर होता जाता है। लाइक हम बहुत एक डार्क एली में चल रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक टॉर्च लाइट है, फ्लैश लाइट है, जिससे सिर्फ 2-3 स्टेप्स दिख रहा है। जस्ट कीप गोइंग, यू विल गेट योर पाथ, है ना। मे बी वी आर जस्ट सीइंग लिटिल बिट हियर, डोंट वरी अबाउट द एंड गोल, बी इन द प्रेजेंट, व्हाट यू हैव टू डू टुडे। आज मैंने क्या साधना की, एट लीस्ट आई वुड से हाफ एन आवर एवरी डे स्पेंड ऑन योर सेल्फ फॉर बिगनर्स। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, ये हनुमान जी बोल रहे हैं विभीषण को, प्रभु की यही रीति है कि वो सेवक पे सदा प्रेम करते हैं। भगवान ऑलवेज लव्स अस, दिस वन यूनिवर्सल फोर्स विच ऑलवेज लव्स अस बिकॉज इट इज आवर ओन सेल्फ, इट इज आवर ओन सेल्फ। सबसे ज़्यादा प्यार हमको किससे होता है? स्वयं से ना, अपने आप से, है ना। तो हमेशा अगर यू फोकस इनवर्ड, you will feel that that inner force is guiding you all the time. You'll always have that feeling. You will not feel alone. You may be alone, but you won't feel lonely. Okay, you'll always have something or someone to guide you from inside. Okay, बोलते ना, रमना महर्षि बोलते थे, भगवान is sitting in the cave of our heart. It's here. He used to point it here, 1 inch right of your anatomical heart. I don't know why he did that, but that's what he said. You feel yourself here, even though Atma is all pervading. बट दैट कनेक्शन यू फील हियर। दोनों एक दूसरे को यही बोल रहे हैं, दोनों सत्संग कर रहे हैं। एंड देन कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि ये देखिए बहुत सुंदर है। ओके, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन तहि न मिली आहारा। हनुमान जी बोल रहे हैं अभी विभीषण जी को, कि भला कहिए मैं कौन सा कुलीन हूँ, एज दो आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। मैं तो बंदर हूँ मैं तो वानर जाति का हूँ। ही सेज दैट कपि चंचल, मैं तो चंचल हूँ, मेरा मन तो हमेशा चंचल ही रहता है, लाइक अ मंकी, आई एम चंचल, है ना। कपि चंचल सभी विधिहीना, और सब प्रकार से नीच हूँ। कोई हमारा मुंह दिन भर देख लिया, उसको खाना नहीं मिलेगा या हम उसका खाना लेके चले जाएंगे। ही इज सेइंग दिस अबाउट हिमसेल्फ। इमेजिन द लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी दीज टू पीपल हैव, है ना। मतलब आप पूरे प्रसंग में देखिए, वो अपनी बात तो कर नहीं रहे हैं। उन्होंने बोला आप अपने बारे में बताइए, बट बात कर रहे हैं श्री राम की, वो भी बात कर रहे हैं। मैं तो बेचारा हूँ, तामस तनु, मैं तो राक्षस हूँ, भगवान की कृपा हुई तभी आप मिले। सो दिस इज अ साइन ऑफ ग्रेट लीडर एक्चुअली, द ह्यूमिलिटी। क्योंकि रमना महर्षि के प्रसंग से मैंने एक चीज सुना था, अ लीडर शुड हैव 2 थिंग्स, सहजता एंड सुलभता। सहजता मीन्स स्पॉन्टेनिटी एंड नेचुरल फ्लो। That person should not have an air around, like it should be natural flow जो भी बात कर रहे हैं। सुलभता means easily accessible, बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर का easily accessible होना। तो इस संदर्भ में एक्चुअली
I'm doing life and leadership coaching with her for the past 3 years, but she has changed a lot. उनका life का perspective ही change हो गया है बात करते करते. And then, but when I started with her initially, she had a lot of fear in her, or she did not realize her own potential. ऐसा बोल सकते हैं, जैसे हम अपना potential realize नहीं करते कि हम क्या कर सकते हैं, right? हमको हमेशा अपने ऊपर डाउट रहता है, या फिर हम आइडेंटिटीज में लिव करते हैं जो हमको वर्ल्ड ने दिया है. If somebody has told you, like if you have a brother and a sister, if somebody keeps telling you you're not as smart as your brother, वो sister के मन में यही तो आ जाएगा ना. So we live by identities the world has given us. Oh, you're a girl or you're a boy, you can't do this. Mothers cannot do this, you know. Mothers have kids to take care of, so they cannot be entrepreneurs. Like, you may have different identities, but we are limited by our identities. WhatsApp होता है ना, तो उनके WhatsApp में she used to see her messages late, and उनका वो blue tick भी नहीं होता था. She used to, है ना, एक privacy option होता है ना कि the other person doesn't know that you have seen the message, ऐसा होता है ना. तो I just asked her this question कि क्यों आपने ये नहीं किया, मैसेज रेड रिसीव दूसरों को बताने का. तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बोले मुझे. तो कुछ पॉइंट्स है जैसे इट्स, आई आस्क्ड हर व्हाट आर यू अवॉइडिंग. सो वी साथ में डिस्कस कर रहे थे, लाइक इट्स अ प्रेशर टू रिस्पॉन्ड. आई डोंट वांट द अदर पर्सन टू नो दैट आई हैव सीन द मैसेज, देन आई हैव द प्रेशर टू रिस्पॉन्ड. या फिर प्राइवेसी चाहिए मुझे, आई डोंट वांट देम टू नो दैट आई हैव रेड देयर मैसेजेस राइट अवे. एंड देन इट कैन ऑल्सो बी लाइक यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू नो व्हेन आई रेड योर मैसेज. ऐसा भी हो सकता है. तो वी केम ओवर सम पॉइंट्स. ठीक है, मैंने उनको बोला कि अगर आपको बड़ा विजन होना है लीडर का, you don't have to hide behind technology. You have to go out there, be out there. You have to be easily available for people if you're looking to inculcate that leadership opportunity within yourself, right? To be sensitive about small matters, nuances of life, or acknowledging the presence of others. जैसे हनुमान जी ने विभीषण का presence acknowledge किया, जिनको पता चला कि वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लग रहे हैं ना. तो as a leader, you should care about feelings of others. Okay, that you're acknowledging their presence just by reading the message. Even though I don't have, like, we don't have a lot of friends, there are a lot of features in iPhone. जैसे मैंने एक feature activate करके रखा है जिसमें इसको बोलते हैं text replacement. In iPhone there's a feature called text replacement. So even if I'm driving, sometimes we check messages while on the red light or something, right? Or sometimes we don't have time but we still check messages. So I've used that thing. जैसे RW में type कर दूँ तो उनको message जाएगा, received, will get back to you soon. So इसको बोलते हैं text replacement. At least you have acknowledged. So I try to acknowledge their messages as soon as I receive it, whenever I get time. So इसमें, because you don't owe anyone anything, ये बात तो sure है, we don't owe anyone anything, but you owe people who reach out to you some clarity and acknowledgement. Don't let them hang in lurch that you haven't read the message or you have read them or not, right? And this is what it is, or this is coming from, where is this coming from? Because everybody wants to feel acknowledged. कोई आपको इग्नोर करेगा मीटिंग में, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना. मैं जब ट्रेन करती थी मेरे सेक्रेटरीज को, आई हैड अ 3 second रूल. व्हेन अ न्यू पर्सन पेशेंट वॉक्स इन, नो मैटर व्हाट यू डूइंग और टॉकिंग टू ऑन फोन और अनदर पेशेंट, यू हैव टू एक्नॉलेज देम विद इन 3 seconds. ये मैंने 3 second रूल बनाया था. इट्स अ गुड कस्टमर सर्विस. एक्नॉलेज, इवन दो यू आर बिजी, यू कैन जस्ट लुक एट द आईज एंड टेल देम टू वेट, right? So you always have to, when you walk into the room, you should acknowledge everybody around you. You should at least have eye contact with everybody. That is a sign of a person who acknowledges the presence of others. And where is this stemming from? This is stemming from our सत, चित आनंद के सत पार्ट से. सत का मीनिंग क्या होता है? एग्जिस्टेंस ना. Everybody wants to feel that they exist and they feel acknowledged. Okay, as a leader, you should always acknowledge the presence of others as soon as possible, because a good leader is one who makes you fall in love with them so that you want to work for them, not have to work for them. Want or have में difference होता है ना. So a good leader is like, or this not only is our basic requirement, the sat, the existence we all want to feel, but it is also an indication that to blue tick is also an indication of opening up your own heart chakra. Okay, that you have that compassion, that you don't keep the other person hanging in lurch, you acknowledge their presence right away. And it's very easy to hide behind technology, and privacy and all those things are fine, but if you want to make people fall in love with you, you should be available to them. Okay,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सत हो गया, चित हो गया। चित का क्या होता है? अ लीडर शुड नॉट मेक एनीबॉडी फील दैट दे डोंट नो एनीथिंग, है ना? तो हनुमान जी का भी यहीं पे यहाँ है, वो दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं बहुत ज़्यादा, दिख रहा है? ही इज़ नॉट मेकिंग हिम फील दैट ओ तुम तो राक्षस जाति के हो, है ना? तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो हाउ यू डू दिस, आई रियली फील सॉरी फॉर यू। ऐसे हमको किसी को नहीं बोलना चाहिए। नो मैटर वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, what stage of life or evolution they are in, we should always be encouraging to others. अपने आप को ही छोटा कर लो, मुझे कौन सा आसान है, देखो मैं तो इतने मुश्किल में हूँ, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, राइट? सो दैट वे यू कैन रिलेट टू देम बेटर and encourage no matter who it is. So a good leader is also a good teacher. So a teacher should come down to the level of the student to acknowledge what they feel or what knowledge can seep in them. Okay. और आनंद तो फिर है सच्चित आनंद का आनंद मीन्स, तो ये दोनों तो आनंदित ही हो रहे हैं। इसमें देखिए एक बहुत बड़ी बात है समझने की, ह्यूमिलिटी उनमें गजब की है। ह्यूमिलिटी दोनों बहुत क्वालिफाइड हैं। विभीषण इज ऑल्सो लंकापतिज ब्रदर, राइट? मतलब महान है, वो भी इतने रिच थी लंका। और हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, है ना? बट दोनों किसका गुणगान कर रहे हैं? राम जी का गुणगान करें, अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। उनका सारा प्रेजेंस राम जी के कारण है, वो ऐसा दिखा रहे हैं। तो ये ह्यूमिलिटी जो है ना, आपको विद्या के लिए रेडी करती है। जैसे हम जो पढ़ रहे हैं, अगर हम एक्नॉलेज करते हैं हर वक्त कि ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हमारा क्या है? मैं तो कुछ इन्वेंट करके पढ़ा नहीं रही हूँ, है ना? हम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम उनका ही जो ज्ञान है दिया हुआ पढ़ रहे हैं। तो ये आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी लाता है और विनम्रता बोलते हैं। तो विद्या ददाति विनयम, विनय से विद्या आती है और विद्या से विनय आता है ना? जैसे जैसे आपकी विद्या बढ़ने लगी कि आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। आजकल क्या होता है, जहाँ कुछ थोड़ा विद्या आ जाती है, फेमस हो जाते हैं लोग, लोग चीज़ों को पेटेंट कराने लगते हैं, अपना ये अपना बनाने लगते हैं। मैंने लास्ट ईयर एक बहुत फेमस ये है, आई थिंक ही इज़ अ कॉर्पोरेट मोटिवेशनल स्पीकर, इंडिया में बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए। उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसने यही एग्जाम्पल दिया था अपने उपनिषद से, जो समुद्र और वेव का एग्जाम्पल नहीं है जो हम हमेशा बात करते हैं, है ना? और सब लोग बहुत तारीफ करते थे, वाह क्या एग्जाम्पल है, क्या आपने बोला है। उसने एक बार भी कोट नहीं किया उपनिषद को कि मैंने उपनिषद से पढ़ा या वेदांत की स्टडी से पढ़ा है। ही वॉज प्रेजेंटिंग एज दो इट्स हिज नॉलेज। क्यों? क्योंकि वो कॉर्पोरेट टीचिंग्स करता है और ये करता है, तो उसको लोगों के मन में ऐसा भी विचार हो सकता है उसके मन में कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम से लिया हूँ, तो हो सकता है उसका इफेक्ट कम हो जाए ना। पीपल थिंक दिस वे, राइट? दे डोंट वांट टू एक्नॉलेज द सोर्स, एंड आई फील दैट्स अ प्रॉब्लम। दैट्स लैक ऑफ ह्यूमिलिटी एंड लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड विद इन यू फॉर दिस नॉलेज, है ना? बोलने में क्या जाता है कि या आई एम स्टडिंग दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम, वेदांत से मैंने ये सब सीखा है जो मैं बोल रही हूँ। दैट वे यू कैन एनकरेज द अदर पर्सन ऑल्सो टू लर्न वॉट यू हैव लर्नड। बट जिनको अपना शायद फॉलोअर्स बनाना पड़ता होगा, उनको शायद ये अच्छा लगता होगा, बट दे डोंट कोट इट। सो वी मस्ट ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ द नॉलेज। तो ये लोग क्या कर रहे थे, हनुमान जी, और ये सोर्स को ही एक्नॉलेज कर रहे थे ना, राम जी को, कि कहाँ से उनका ये आता है। इसमें भी आता है ना, पतंजलि योग सूत्र में भी आता है ना कि माइंड को शून्य होना पड़ता है वो ज्ञान के लिए, है ना? यू हैव टू थिंक दैट आई एम नो बडी, आई नो नथिंग एंड आई हैव नथिंग, एवरीथिंग हैज़ बिन गिवन टू मी, नथिंग इज माइन। आपको क्या मिला? आपका शरीर तो आपके पेरेंट्स से मिला आपको, है ना? जो भी विद्या आपने अर्जन की स्कूल से, वही पैसे पेरेंट्स ने दिए होंगे। जो ज्ञान मिल रहा है हमको, मिल रहा है शास्त्रों से, संतों से। हमारा क्या है, हम क्या दे सकते हैं? बोलते ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो सच में फील करना शुरू करिए, हमारा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड इज़ वेरी ट्रांजैक्शनल, वेरी ट्रांजैक्शनल। कोई भी रिलेशनशिप देखिए आप, ट्रांजैक्शनल होता है। कल को आपका पति, बच्चा या कोई भी आपसे उस तरह से रिलेट नहीं करता जिससे आप करना चाहते हो, यू वोंट लाइक दैट पर्सन, दैट्स योर ओन फैमिली मेम्बर, राइट? वर्ल्ड इज़ वेरी ट्रांजैक्शनल। द ओनली नॉन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इज विथ योर हायर सेल्फ, भगवान, तत्वमसी, यू आर दैट, राइट? सो दैट इज़ वाई फोकस विद इन। तो यही हमको सीखने को मिलता है कि इन दोनों के मिलन से। इसमें नेक्स्ट बोलते हैं, हनुमान जी फिर से बोलते हैं, अस में अधम सखा सुन मोही पर रघुवीर, ही कृपा सुमिरे गुण भले विरोचन नीर। हे सखा, उसको फ्रेंड जैसा बोलते हैं, हे सखा सुनिए,
मैं ऐसा अधम हूँ, अधम मतलब पापी है ना, अधर्मी। अधर्मी, अपने को अधर्मी बोल रहे हैं हनुमान जी कि पर श्री राम जी की मुझ पे कृपा हो गई। भगवान के गुणों का स्मरण करते हनुमान जी के दोनों नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी, जल मतलब निकलने लगे। ही स्टार्टेड क्राइंग कि मैं तो इतना पापी हूँ, नीच हूँ, बट भगवान की ही कृपा हो गई जो मैं आज यहाँ हूँ। हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल सकते हैं ना। तो हमको भी ऐसे ही सोचना है कि हम यहाँ आ गए, ये कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा हो गई। हमने तो क्या ही कर लिया, बस हो गया सब कुछ, पता नहीं कैसे। वही वहीं पे फ्री विल और वो आता है डिवाइन विल, है ना। व्हाट डू यू वांट टू थिंक अबाउट, हाउ डू यू वांट टू थिंक योर लाइफ, हाउ इज इट अनफोल्डिंग, इज इट एवरीथिंग योर डूइंग, और इज इट अ डिवाइन विल। जानत हो अस स्वामी विचारी, फिर ही ते काहे न होत दुखारी। ये जानते हुए कि मेरे ऐसे स्वामी हैं, उनको भुला के भी मैं विषयों के पीछे भटकता रहता हूँ और दुखी होता रहता हूँ मतलब आवर माइंड कीप्स ऑन गोइंग इनटू वर्ल्ड। वर्ल्ड से आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा, है ना। जो ये समझ गया है कि वर्ल्ड से सुख नहीं मिलने वाला है, पर इट कैन गिव यू टेम्पररी हैप्पीनेस, बट इट कैन नेवर गिव यू परमानेंट हैप्पीनेस। तो इसी प्रकार श्री राम जी के गुणों का समूह को कहते हुए उन्होंने परम शांति को प्राप्त की, मतलब वो अंदर से भगवान राम में लीन हो गए हनुमान जी, ऐसा बोलते बोलते। फिर उनको थोड़ा होश आया तो बोले, पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही। फिर उनको थोड़ा होश आया तो बोले, अरे मैं तो जनक सुता मतलब सीता जी के बारे में पता करने आया हूँ, आपको पता है उनके बारे में क्या। उनको याद आता है। फिर तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, देख ही चहूँ जानकी माता। मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, आप मुझे उन तक ले सकते हैं, चल सकते हैं क्या। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनो तनहा, बन अशोक अशोक सीता जहाँ रहवा। तो विभीषण जी उनको सारा उपाय बताते हैं कि यहाँ पे अशोक वाटिका है, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे, और आप छोटा रूप धर के जाइए वहाँ पे आपको सीता जी मिल जाएंगी। तो ये हम अगले बार देखेंगे कि सीता जी से मिलन से क्या होता है और उससे क्या क्या हम लेसन सीख सकते हैं। हम लोग ओम पूर्णमद से एंड करेंगे, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन टू टेक क्वेश्चन आंसर अबाउट एनीथिंग इन जनरल, लाइफ, लीडरशिप, व्हाटएवर, राइट। हाँ, जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।